It is a very auspicious day tomorrow. The final Snan of the Mahakumbh will take place tomorrow, and the date coincides with the Mahashivratri. My colleague Vasudha joins us on the broadcast. She is at the Mahakumbh. Vasudha, we do believe you have a lot of people around with you as well, and it's going to be a very big day tomorrow. The final Snan is taking place tomorrow. What all arrangements are being made, and what is the Yogi administration looking at in terms of managing the huge influx of devotees? Absolutely, Kitty. Good evening to you and good evening to all our viewers. It's a special day and it's a special broadcast from Prayagraj, ground zero of Mahakumbh 2025. Many people say that Mahakumbh is actually a reflection of India. In fact, it's a mini India. It's in fact a reminder of the fact that while a lot of things about the country changes, there's also something that remains inherently the same. The question of faith, the question of devotion, and when it comes to stories of salvation, nothing like Mahakumbh. In fact, I have an interesting group of people with me. This is a family from Bihar which has come, and there are like two generations, children who wanted to come to Kumbh and parents who have accompanied them and parents who also are equally interested. There's also a group of researchers, health professionals, in fact, people who are studying public health, very important for the progress of our country, and also two professionals who work in the private sector from Punjab. Let me get you some voices as to what really brought these people to Mahakumbh. Tomorrow is Shivratri. It's also a day when Mahakumbh culminates after several days, after 45 days of being this large gathering with several bathing rituals on Posh Purnima, Marg Purnima, and also starting with Makar Sankranti and Mauni Amavasya. But tomorrow's Shivratri Snan is going to be also very important because the administration is expecting thousands of people. Remember, the number has already hit 63 crores now, and the Yogi administration wants to be completely prepared to ensure that no untoward incident takes place. ये बताइए first तो आपका नाम और ये पूरे परिवार में जो आप लोगों ने आज आने का जो डिसीजन किया, ये किसका डिसीजन था और ये यहाँ पे आने की इच्छा किसने पहले जताई थी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम हाय, मेरा नाम कबीश राज है और जैसा आपने पूछा कि किसकी इच्छा थी, तो ये सबकी इच्छा थी महाकुंभ में जाने के लिए। और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को स्नान करने का, वो भी 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ आया है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिपरेशन, व्हाट दे हैव मेड, इट इज़ ऑसम. इट्स लाइक no words is that, ma'am. Each and everything is on the way, means thing is moving. That's it I can say. We are very happy. You're also a young professional. What was your experience? Because young logon ka, our expectations are also quite a lot. So how did you feel about the experience? And are youngsters getting more religious in your experience? यस, यंगस्टर आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ रहे हैं महाकुंभ में, और यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे सब कुछ. अच्छा, आप बताइए, थोड़ा आगे आइए. अच्छा, ये बताइए आंटी कि आपका स्नान कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. और खाने पीने के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है, आपको व्यवस्था अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छा. So another interesting group of professionals here. I mean, they are researchers, and I believe they're the most important people in this country. Tell us, how has your experience been like? अभी तो आज ही हम लोग आए हैं, कल प्लान किया था हम लोगों ने और आज आपके पहुँचे. स्नान वान करके हम लोग अभी घूम रहे थे, तो अच्छा ही था एक्सपीरियंस. क्लीननेस वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ठीक है. सेफ हाइजीन एंड सैनिटेशन. हाँ बताइए, क्योंकि देयर ऑल्सो लोग कहते हैं ना कि पानी गंदा है, तो इसको ये जो पब्लिक हेल्थ के साथ जो जोड़कर देखते हैं और एक कहते हैं कि आस्था है, तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. एज रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ पे जो रिसर्च करते हैं, आपको क्या लगता है कि बैलेंस किस तरह मेंटेन होना चाहिए? बैलेंस तो मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज देखो काफ़ी सारे लोग आते हैं. पानी, हम ये नहीं बोले पानी गंदा है, क्योंकि बोल ही नहीं सकते पानी गंदा, बिकॉज गंगा जल है. बाकी सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जस्ट लाइक अ वॉशरूम वगैरह, ये सब. क्लीनिनेस थोड़ा मेंटेन करके अगर चलेंगे सब लोग तो बेटर है आगे के लिए. यू आर प्रोफेशनल्स फ्रॉम पंजाब. हाँ, आजकल काफ़ी प्रोफेशनल्स मैंने देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो ये जो है ट्रेंड है कि ये हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है? बिल्कुल हाँ, ये शुरू से नहीं, अभी जैसे
कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल रही है हमें, तो आना अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है मैं मतलब कुंभ में आया हूँ 144 ईयर के बाद जैसे आया, तो मेरा भी इंटरेस्ट बना आने का। जितना मतलब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इतना क्राउड होने के बाद भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। क्लीननेस का अच्छा ध्यान रखा गया है लोगों ने, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमको एक दिन हुआ भी टुडे, हम लीव लेके आए हम प्राइवेट जॉब से, तो अच्छा मतलब छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं मैम, छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स को जानते हैं जो कुंभ आना चाहते हैं, आते हैं, या ये आपको लगता है कि एक नया एक ट्रेंड है? मैम एक ये नया ट्रेंड चला है कि लोगों को ऐसे है कि 144 बार लगा है ना, तो जाके देखे क्या चीज़ है क्या नहीं है। लोगों के मन में उत्साह इतना है कि आप उनसे बयान ही नहीं कर सकते वो। मैं That's very interesting. Thank you so much. 144 years. Remember that this is also an event. Mahakumbh 2025 comes after 12 Purna Kumbhs. One Kumbh is held after 12 years, which is why this Mahakumbh is believed to be a one-time occurrence in 144 years, which has also in some ways increased the significance and essence and in fact the curiosity around this. In fact, I spoke to more people who are part of Mahakumbh, and I sense that this is also an opportunity for families to get together. In fact, there are many groups of friends who see this as an opportunity to explore not just faith but also how they look at religion. Let's listen into some of those voices. Well, Mahakumbh 2025 is also an example how families have come together, in fact, with members that they supposedly lost in touch with, or also members that they want to foster stronger bonds with. This is Karanjit Singh ji, who's come from Roorkee in Haridwar, and these are his sisters. And this is a whole family that has come for Mahakumbh. Sir, ये बताइए कि कब आना हुआ आपका, and कब आपने ये सोचा कि आपको आना ही है इस बार? मैडम मन में तो था कि कुंभ में आए, मगर सब डर जाते थे कि रील वगैरह देख के कि बहुत भीड़ है, ये है और वो है, मगर फिर भी हमने अपने मन में ठाना। 2-3 दिन पहले सोचा कि भाई कुंभ निकल जाएगा, 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, कि हम लोगों को भी जाके संगम में डुबकी लगाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कल परसों ही प्रोग्राम बनाया और हम लोग कल ही रुड़की से वहाँ से चल दिए, हरिद्वार रुड़की, जिला रुड़की से। तो आज सुबह हम आए और संगम में डुबकी लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा। अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, मान लो सब सुख सुविधाएँ हैं यहाँ पर। मान लो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो कोई परेशान हो रहा है, परेशानी कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग नहा के आए हैं, कपड़े चेंज किए हैं और अब जाके कहीं पे कुछ खाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो काफ़ी यंग हैं, व्हाट डू यू डू एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट मैं ये देख रही थी कि मेरा सपना होगा, बट वो आज मेरा पूरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं कुंभ में आई हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कुंभ में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, व्हाट अबाउट यू? मैं सीमा सैनी हूँ, मैं भी रुड़की से आई हूँ करण भाई के साथ। एक्चुअली में हमारा काफ़ी टाइम से कुंभ आने का बन रहा था, पर कुछ लोगों ने बहुत ही गलत अफवाहें उड़ा रखी थी, जैसे कि सीवर लाइन छोड़ दी या फंगस वगैरह, बहुत कुछ उड़ा रखा था, जिसके रहते हमारी पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि नहीं जाना। बट हमें कुंभ में आना था, हमारी एक श्रद्धा थी कि हम लोग जाएं, और उसी आस्था के साथ हम भाई बहनों ने प्रोग्राम बनाया। जो भी होगा आई एम गोइंग, हम जाएं। कल शिवरात्रि है, क्या वो भी मनाएंगे आप लोग? जी, हम जो त्रिवेणी घाट से जल भर के लाए हैं, ये अपने जाके रुड़की में शिव मंदिर पर चढ़ाएंगे और शिवरात्रि मनाएंगे जी। So that's a group of family, a brother with his sisters and a whole lot of nieces and nephews who have come together to be part of Mahakumbh 2025. 2025 is also about friends getting together and making this an experience they will remember all their lives. With me is a group of 3 friends. One runs a gym, the other one is a Panchayat Samiti member, the other one runs an auto. आप लोग तीनों दोस्त हैं, ये बताइए कि कुंभ में आने का, सारा पूजा पाठ करने का ये आइडिया किसका था और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम यहाँ पे सब मिल के आने वाले थे, लेकिन बहुत काम था, उसकी वजह से अलग अलग तरफ से हम आ गए यहाँ पे। हमारे इधर कम से कम 25 मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये बहुत भीड़ है, उसकी वजह से इधर टीम बनाई, छोटी छोटी टीम बनाई है। थोड़े लोग उधर गए, थोड़े लोग इधर आए। आप एक पंचायत समिति मेंबर हैं, ये बताइए कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो होता है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कुंभ को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए? नहीं, ये पॉलिटिक्स रखना ही नहीं चाहिए। जो भगवान है ना, जो कर्म करते हैं उसका फल इधर ही मिलता है।
ये कलयुग है और कलयुग में जो आप करोगे वो इधर ही आपको सब करने का है। मैंने बहुत इसकी प्रसिद्धि ली, जो आपने मतलब लोग दिख रहे हैं ये इधर आके भी पीछे जा रहे हैं और बोल रहे कहाँ है त्रिवेणी संगम, कहाँ है त्रिवेणी संगम। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे है। तो मतलब मालूम है ना, मतलब जो आप ये कर रहे हो तो अच्छा कर्म किए तो ही इधर आ रहे हो आप सब। अभी मैंने बहुत लोगों को पूछा आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। केरल से आए, कोई गोवा से आए, कोई महाराष्ट्र से हमारे इधर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। मतलब आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी लोग बोलते हैं कि पानी शायद इतना साफ़ नहीं है, क्या ये चीज़ों का आस्था पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन हमको इधर आके दो दिन हुआ, लेकिन इधर हमने कल स्नान किया इधर गंगा में, लेकिन हमको इधर बहुत अच्छा लगा गंगा में स्नान करके। वो क्या बोलते हैं कि कुछ होता है कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इधर बहुत अच्छा लगा इधर आके। पानी का लेवल खूब बहुत अच्छा है, क्योंकि कल हमने स्नान किया है ना, तो हमें लगा चिपचिप है, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, बहुत क्लियर है। पर एक आखिरी क्वेश्चन, तीनों फ्रेंड्स मिलकर आ रहे हैं, क्या आप लोग हमेशा ऐसे ट्रिप लेते हैं? और कुंभ में आने का फ्रेंड्स ऐसा जाते हैं धार्मिक टूर्स में? धार्मिक कार्य में हम जाते हैं। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य करते हैं तीनों भी ऐसा। और इधर अभी हमने कल पानी लिया था 5 लीटर इसमें कैन में, और अभी वो पानी देखा वो जैसा क्लीन था वैसा ही क्लीन था। अभी आप देख रहे हो इतना भीड़ है, सब नहा रहे वगैरह, लेकिन कल हमने सब गंगा का पानी लिया, आज हम त्रिवेणी का ले रहे हैं। और कल वापस चले जाएंगे? कल उज्जैन महाशिवरात्रि है ना, इधर से उज्जैन करके हम रत्नागिरी जाएंगे। So the plan doesn't end with just Sangam here. They are also going to Ujjain, which is also considered one of the Mahatirths, also one of the 4 places apart from Nashik, Haridwar and Prayagraj considered very important. That's me, Vasudha Venugopal, with Pooja Arya for NDTV. Well, it's not without reason that Mahakumbh is often seen as mini India. I have 2 different groups of pilgrims with me. One is from Maharashtra, which is on the western end, and there's a group of pilgrims from Assam, and they all have these orange cans of Ganga Jal. Let me ask the group from Maharashtra first. Your name is Kajal, आप student हैं, कितने लोग आपके परिवार से आए हैं, और एक्सपीरियंस कब आए थे और कब स्नान का प्लान है, और पहली बार क्या कुंभ है आपका? ये हमारा पहला ही कुंभ है, मतलब सुबह ही आए हुए आज आए और अभी जा रहे हैं मतलब स्नान के लिए। हाँ। और कितने लोग आए हैं? 10 लोग आए ले। तो आप लोग 10 लोग, ये प्लान बहुत महीने पहले बनाया था? बहुत पहले। क्यों लगा इस बार आना है कुंभ में? अच्छा लगा हमको। लगा क्यों कि आना है? आने का था रहे और देखा न्यूज़ में देखकर बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़ में देखकर आपको आने का मन किया? अच्छा, आप लोग ऐसे धार्मिक जगहों पे जाते रहते हैं? जाते रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कौन से धार्मिक जगह पे? धार्मिक लोग जाते रहते हैं। वहाँ पर तो बोलते हैं काशी है ना, और प्रकाश वहाँ प्रतिकाश, विठल रुक्मिणी। हाँ पंढरपुर है, और प्रतिकाशी भी है, प्रकाश हमारे गाँव पास में ही हो, वहाँ पर जाते हैं। रिलीजन में आप लोगों को, आप यंग हैं तो आपको भी धार्मिक चीज़ों पे इंटरेस्ट है? बिकॉज मेरी मम्मी को इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। त्र्यंबकेश्वर जाते, पंढरपुर जाते, जिजोरी। जी, आपको यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपको सब अच्छी बात लगी ना? बहुत अच्छा है यहाँ का आयोजन, बहुत अच्छा किया। पानी ठीक था, कुछ लोग बोलते हैं कि खराब है, पानी आपको ठीक लगा? अरे लोगों को बोलने देना, लेकिन गंगा तो कभी खराब नहीं होने वाली ना। गंगा का पानी कभी खराब नहीं। पानी बिल्कुल सही था। आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और वापस कब जाएंगे? कल महाशिवरात्रि है, उसका कोई प्लान है? कल जाएंगे हम। कल महाशिवरात्रि का स्नान जाएंगे। कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र में? प्रकाश कहाँ है? नंदुरबार। So a group of pilgrims from Nandurbar, different generations. Let me ask the Assam pilgrims here. आप गुवाहाटी से हैं? आसाम लामडिंग से हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ भी तो हिमंता बिश्वा शर्मा कामाख्या मंदिर की बहुत बातें करते हैं, और यहाँ आपको योगी हिमंता बिश्वा शर्मा दोनों अच्छे लगते हैं? कौन ज़्यादा? दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं दोनों। कामाख्या जी का जो प्रोग्राम जो है वो टोटली अलग है, बहुत डिसिप्लिन से होता है। वो प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी जाइए, बहुत सुंदर होता है। माँ कामाख्या, उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क लगा? उसमें मतलब उसमें और इसमें इतना वो टोटल अलग है, ये टोटल अलग है। ये स्नान करने के लिए आते हैं कुंभ के मेले में। इंडिया का ये हो गया ऑल ओवर इंडिया का, और वो हो गया असम का, ऑल ओवर कंट्री का, और हो गया हमारा असम का, हो गया ऑल ओवर इंडिया का।
आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये ग्रुप आप लोगों ने खुद से बना के आप आए हैं? खुद से बना के आए हैं। हम लोग सब दोस्त हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ्स, चिल्ड्रन, वो सब उनको भी लेकर आए हैं? नहीं लेकिन नहीं है, हम लोग अभी पहली बार आए हैं कुंभ में। हम लोग डर गए हैं क्योंकि इतना न्यूज़ में इतना दिखाता है, इतना भीड़, इतना हलचल है ना, तो फैमिली मेंबर को लाएंगे, छोटे बच्चे लोगों को, तो कैसे होगा? अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो इसलिए डर के हमारा सिर्फ हम लोग। ये सब पानी आपने कहाँ से लिया है? संगम से लिया है। ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं? घर में सबके लिए। नहाएगा, इसी से नहाएगा, तो जो लोग आ नहीं पाए उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा देंगे। So that's how it is. Pilgrims here are very sentimental about what they think about Ganga, and nobody wants to actually even encourage the thinking that there could be something even unclean about the Sangam water here, because faith overrules everything, and there's a collective sense of oneness when it comes to Mahakumbh 2025. Remember, tomorrow is Mahashivratri, and it is one of the last bathing rituals that's practiced here, which is why the government has put in a lot of efforts to enhance not just security but also emergency response, specifically in the ghats. Remember, on Mauni Amavasya there was also a stampede, which is why the government wants to ensure this time that there are no untoward incidents. Mahakumbh 2025 is culminating in a few hours from now. This is the confluence of faith, devotion and stories of salvation. I'm here with Mr. Banu Bhaskar, a senior IPS officer who has been at the center of all action here. In fact, he is ADG in charge of Mela Affairs. Thank you so much, Mr. Bhaskar, for speaking to NDTV. So tomorrow is Shivratri. It is the day of the Akhri or last Amrit Snan. What are the preparations that the administration has put forward? So Mahashivratri, the preparations are on two levels. First is that there will be normal snan. For normal snan, for what we have witnessed in the last almost 1 month, 45 days, is that we see close to 1.5 to 2 crore people every day. So that aside, while we are going to ensure that everybody has a proper snan and they return back with good memories, at the same time, there will be a group of people who like to take the holy water from River Ganges and Triveni and go and visit the Shivalays. So we have 7 Shivalays here. We have visited each of the Shivalays, spoken to the pilgrims, seen the Tehvar register and the past records, and accordingly made preparations so that when people, the culmination of both Mahashivratri and Mahakumbh, so there will be an excitement. So we can ensure we have made preparations so that there is a proper way in which we conduct the safety, the traffic, as well as the crowds movement of the pilgrims within the Shivalay, outside the Shivalay, and from the Ghat to the Shivalay. Right. When it comes to emergency response, Mr. Bhaskar, what are the preparations like? So we have contingency plans. The contingency plans have been rehearsed for the last almost 6 months, which have been made in conjunction with the past experiences, which is made in conjunction with the data available, plus all the recent data which has come up through our control center. We are standing in the control center. So all the data that comes along with this, that helps us prepare for the contingencies, and that helps us enact the contingencies. So the various contingencies which are there of crowd movement, traffic movement and safety, they all have been rehearsed, they have been practiced, and we're prepared for any contingency. हमारे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और वो सेट ड्रिल है, तो कल के लिए हमने पूरी तैयारी की है। सभी मजिस्ट्रेट्स को, पुलिस के ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया है। अभी आज भी एक अंतिम तैयारी बैठक हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हमारी पार्किंग सुचारू रूप से चले, ट्रैफिक अच्छे से चले, ट्रैफिक डाइवर्जेंस का जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो पालन करें। रेलवेज के साथ में बेहतर कोऑर्डिनेशन है, और जो सड़क मार्ग से जो लोग आएंगे तो उनको भी कहीं बहुत दूर ना रुकना पड़े, और उनका जो अमृत स्नान है वो अच्छे से हो जाए, तो उसकी हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये महाकुंभ के पावन पर्व का अंतिम स्नान दिवस है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ी है, तो उसको लेकर हम पूरी तरह मुस्तैद और संजीदा हैं। So basically there is, also there's one thing that is very special about Mahakumbh 2025. While there are many youngsters here, there are also couples who are traveling on their own with a little support from their family members. अच्छा ये बताइए अंकल आंटी, आप लोग कहाँ से आए हैं और अकेले आए हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैडम हम सवाई माधोपुर राजस्थान से आए हैं, और रणथंभौर नेशनल गेम सेंचुरी और त्रिनेत्र गणेश हमारे यहाँ की डिग्निटी है सवाई माधोपुर जिले की। हमने प्लान बनाया 2013 में भी मैं कुंभ में स्नान के लिए आया था। जब भी मैंने वाराणसी भी कवर किया था,
कुंभ में भी स्नान किया है, चित्रकूट भी जाके आया हूँ। और प्रभु श्री राम जो हमारे जन जन के हिंदुओं के जन जन के आराध्य देव हैं, उनके भी दर्शन जब वो टेंट के दरमियान टेंट के बीच में वहाँ विराजमान थे। आज इतना भव्य और शानदार अनूठा प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, न आज तक बना है न कभी जिंदगी में बनने वाला है। जबकि आज तो इतना अभी तो कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया में ही है। जय श्री राम। ऑल्सो दिस फैमिली, ये बताइए कि आप कितने लोग आए हैं फैमिली से? हम 4 लोग आए हैं। वैसे हमारा बस आया है, पूरा बस है। और कहाँ से? राजस्थान, पहले मतलब ब्यावर से आए हैं। और बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ के मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हमारे को अच्छा लगा। और बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनकी उम्र कितनी होगी? और ये उम्र करीब 80 साल है। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? स्नान में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से जय जयकार से। और जहाँ तक सूरज चांद रहेगा, जहाँ तक मोदी जी का नाम रहेगा। That's so nice. Yes, one second, yeah. यहाँ मैंने व्यवस्थाएं देखी है, मोदी जी और उनके हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की ऐसी शानदार व्यवस्थाएं मैंने पिछले कुंभ में भी स्नान किया था। इतनी शानदार व्यवस्थाएं, अब देखो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए हैं, लगभग 60-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और कल हमारे आप कुछ समापन भी। मैं सिरोही, जिला सिरोही राजस्थान, कालंद्री गांव से आया हूं। बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं और इतने सारे लोगों में इतनी शानदार व्यवस्था, और कोई खोया पाया हो, कुछ भी हो, और स्नान करने की इतनी शानदार व्यवस्था, पुलिस प्रशासन वगैरह, इसलिए हमको बड़ी खुशी हुई। यहाँ आके हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। किधर भी अपन खो गए, अपन कोई भी पुलिस वाले को पूछे या किन को भी पूछे तो इतना अच्छे से बताना, इतना अच्छा सा मुझे भव्य और दिव्य कुंभ है और हमको बड़ी बड़ी खुशी है। राइट, थैंक यू सो मच। ऑल आई गॉट यू पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। वेरी जल्दी से बताइए जी। ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही कुछ मान्य रखता है, जो कि इतने वर्षों में नहीं हुआ, जो मोदी जी और योगी जी ने कर बताया है, जो कि अपने हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जो हिंदू समाज के लिए जो किया जा रहा है, महाकुंभ मां शक्ति के रूप में दिखाई देगा। जय श्री राम, जय श्री राम। So 144 years is what everybody is talking about. There's a lot of enthusiasm. In fact, tomorrow's Shivratri bathing ritual is what most of these devotees and pilgrims are looking forward to. With that, it's a close from me and my camera person Pooja Arya. Thank you. I'm very happy. Jai Bhole.